Now, in a shocking incident this morning, Delhi Chief Minister Rekha Gupta was attacked by a man during a Jan Sunwai at her residence. The Chief Minister's security personnel immediately caught the attacker. An attempt to murder case has now been filed against him. Delhi Minister Parvesh Sahib Singh revealed that the attacker had been conducting recce's for over 24 hours, including a visit to a Shalimar Bagh residence the previous day. He confirmed that the Chief Minister sustained injuries to her hand and shoulder during the attack. News 9 has exclusively accessed CCTV footage from the Chief Minister's Shalimar Bagh residence, which clearly shows the accused outside the premises conducting a detailed recce. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. Those CCTV visuals are on your screens right now. The footage has been handed over to the police as part of the ongoing intensive investigation. The accused has been identified as 41-year-old Rajesh Bhai Khimji Sakaria, a resident of Rajkot. He was arrested shortly after the incident and remains in police custody. Rajkot police have questioned the accuser's mother, who said that she was unaware of her son's visit to Delhi. She added that he travelled to the national capital following a verdict concerning stray dogs and described him as mentally ill. The Delhi Chief Minister's office has issued a statement calling the incident a cowardly and premeditated conspiracy. Delhi police is now working closely with Gujarat police to verify the accuser's identity and motives. Meanwhile, security around Chief Minister's residence has been significantly tightened and her medical condition is reported as stable. Well, clearly, as far as Delhi Chief Minister's attack is concerned, that has sent shock waves across party lines. The incident took place this morning at her civil lines residence, where the Chief Minister Rekha Gupta was conducting a Jan Sunwai sitting. The man, who has now been identified as 41-year-old resident of Rajkot, Rakesh Khimji, attacked Rekha Gupta. The eyewitnesses said that he tried to slap her. She was immediately taken to the hospital for her medical checkup and examination. But in the meanwhile, the security present at the Chief Minister's residence overpowered and detained Rakesh Khimji. He was later placed under arrest. And now what we're given to understand is that there are sections of attempt to murder that has been slapped against him. Delhi Chief Minister Parvesh Sahib Singh revealed that the attacker had been conducting recce's for over 24 hours, including a visit to her Shalimar Bagh residence the previous day. He confirmed that the Chief Minister sustained injuries to her hand and shoulder during the attack. Now, News 9 has accessed the exclusive CCTV footage from Chief Minister's Shalimar Bagh residence, which clearly shows the accused standing outside the premises and conducting a detailed recce. Those are the visuals on your screens right now. You can see the man holding his mobile phone, making videos, recording the surroundings. He has been keeping a close track of all the movements of the Chief Minister with an intention to attack her the following day. There has been footage and videos found on his mobile phone that has raised suspicion. My colleague Jitendra Sharma is joining me right now to get us more details. Jitendra, आप हमें सारा दिन अहम खबरें ला के दे रहे हैं इस बड़ी स्टोरी पे, जिस पे हम अपनी नजर बनाए रखे हैं. हमें आगे जाके बताइए कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगाई गई हैं राकेश खिमजी के ऊपर में. क्या कुछ जानते हैं हम इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये जो आरोपी है इसने मुख्यमंत्री पर हमला किया और जिस तरीके से उन पर अटैक किया है, वो उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा में जो है मामला दर्ज किया है और अटेम्प्ट टू मर्डर की ही उसमें धारा लगाई गई है. इसके बारे में पता लगा है कि इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, यानी कि अब से पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें ये अपराधी जो है वो शामिल रहा है और एक मामला ऐसा भी, इसमें तलवार से किसी के ऊपर हमला किया था. तो ऐसे में तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया. और देखिए, हैरत की बात यह है कि पूरी इसने रैकी की थी. 19 अगस्त तक सीसीटीवी फुटेज है जो न्यूज 9 पर हम दिखा रहे हैं. इसमें पता लगा है कि जो आरोपी है ये एक मैन पुलिंग रिक्शा से पहले वहां पहुंचता है और वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है. फिर जो उनका पर्सनल रेजिडेंस है सीएम का, और वहां पर कर्मचारियों से बात करता है. तो उसे बताया जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वो जन सुनवाई करती हैं. तो ऐसे में वहां से ये यहाँ का जो एड्रेस जहाँ इंसिडेंट हुआ है, एड्रेस लेकर यहाँ पर आता है और सुबह जब यहाँ जन सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री आती हैं
तो ऐसे में उन पर अटैक किया गया, जिसके बाद हिरासत में लिया और फिलहाल गिरफ्तार कर कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। जितेंद्र भाटी, इसमें भी सवाल उठ रहा है कि राजकोट से ये आते हैं दिल्ली में, 24 घंटा यहाँ बिताते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, पूरे एरिया का मुआयना करते हैं, वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पे पुलिस की क्या भूमिका रही है? क्या तब उसको सस्पेशन की नज़र से, संदेह की नज़र से नहीं देखा गया कि ये कौन इंसान है जो आके यहाँ पे इस तरह की वीडियो बना रहा है? देखिए, आमतौर पर जो ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्रियों के घर होते हैं वहाँ आम लोगों का आना जाना रहता है और कुछ सिक्योरिटी लैब्स है, ये इस बात को अंदर से बुखाने माना भी जा रहा है। और वहाँ क्योंकि ज्यादा देर ये रुका नहीं, 4 से 5 मिनट ही वहाँ पर रुका था और वहाँ पर इसने जो कर्मचारियों ने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों हैं, तो उसने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी जो है अपनी जो दिक्कतें हैं, ग्रीवांसेस हैं, वो बताना चाहता है। तब जाकर इसको वहाँ से एड्रेस दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो भी इस लैब्स के जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यही है, जैसा भी आपने भी कहा कि 24 घंटे जो है वो रहता है, लगातार नजर रखता है कि मूवमेंट पर, उनके जो प्राइवेट रेजिडेंस है वहाँ भी जाता है और फिर तो उनका यहाँ सरकारी दफ्तर है, जो जन सेवा केंद्र पर पहुंचकर उन पर इस तरीके से करता है, तो अपने आप में बड़ी बात तो है। बिल्कुल जितेंद्र, ये भी बताइए कि जहां तक कपिल मिश्रा, परवेश सिंह वर्मा, उन सबका ये कहना है कि इस इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए ये केवल एक राकेश खिमजी अकेला इंसान है, ये बात को मानना मुश्किल है। वो कह रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत इसको घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। क्या इसमें और लोग भी इन्वॉल्व है? पुलिस किस नजर से इसको देख रही है? बिल्कुल, देखिए, बात कई सवाल ऐसे खड़े हुए थे कि इससे क्या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, या कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि क्या वो एनिमल लवर है, डॉग लवर है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार ने भी एक्शन में आना शुरू किया, जो आवारा कुत्ते हैं सड़कों से हटाया जाएगा। तो इन तमाम एंगलों का जो है जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। अभी यही पता लगा है कि उस वक्त ये अकेला ही था, और तो उसके परिजनों से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये एनिमल लवर था, और जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, दिल्ली सरकार की कार्रवाई थी, उसको लेकर नाराज था। अब इसको यहाँ तक आने में किसने मदद की, क्या ये अकेला था या कोई और भी इसके साथ था, या किसी ने इसको मोटिवेट किया, तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस उससे जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, और उसी में निकल के आया है कि पहले भी कई ऐसे आपराधिक मामलों में जो आरोपी हो शामिल रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये भी बताइए कि इस पूरे मामले में जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है चीफ मिनिस्टर के घर के आसपास में, और कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, अभी रेखा गुप्ता की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, मेडिकल टीम जो है वो अंदर है। घटना सुबह तकरीबन 8:15 से 8:20 के आसपास की है, और उसके बाद से मेडिकल टीम पहुंची थी, उनका MLC हुआ है, और फिलहाल डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। जो भी लोग उनसे मिलकर आए थे, चाहे वो मंत्री थे या फिर नेता थे बीजेपी के, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि फिजिकली असॉल्ट उन्हें करने की कोशिश की गई, और ऐसे वो सदमे में है, क्योंकि अचानक उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई जिन लोगों से मिल रही है कोई उनमें से करके उन पर हमला कर देगा। तो फिलहाल उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम अभी भी CM ऑफिस के अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए। But my colleague had also spoken to several politicians, cabinet ministers who had landed to meet Rekha Gupta at this point in time where she is dealing with a lot of issues pertaining to security and her own health. Let's listen into those reactions coming in. जिस वक्त मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, ये जो महिला मेरे साथ खड़ी अंदर थी, क्या नाम है आपका? अंजलि दमेजा। आप अंदर की जन सुनवाई के लिए गई थी? हाँ, वो मैं तो डॉक्यूमेंट्स देने गई थी। क्या कुछ हुआ था अंदर? सबकी जैसे दीदी आती है हर बार की तरह, वो अपने आई थी, सबसे जनता से सुन रही थी। सबसे नमस्ते ये करके वो एक एक करके पर्ची कटने के बाद वो सबसे मिलती हैं। हुआ क्या था? कौन था? महिला था, पुरुष थी? पुरुष था। जी जी। और क्या किया उसने? उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुख्यमंत्री को, थप्पड़ मार दिया। उसने क्या बताया, वजह बताई कुछ? नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि सबसे अलग से मिलती हैं। हाँ। जब अलग से मिलते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या बात है? थप्पड़ मार तो आपने देखा, किसी सुना? एक्चुअली इतनी इंस्टेंट था कि जब तक देखा तो आवाज आई, थप्पड़ की आवाज आई, आपने सुनी? सब तो जैसे खड़े होते हैं ना, भीड़ थी अंदर। उस वक्त मुख्यमंत्री अपना डॉक्यूमेंट लैपटॉप लाई थी, मैं अपना काम कराने के लिए आई थी।
तो वो क्या कह रहा था? क्या पेपर्स कुछ लेके के आया था? कुछ क्या था कह रहा था वो? नहीं ऐसा कुछ उसके पास कोई खास, जैसे हम लोग भी पेपर्स लाए हैं अपने, तो उसके पास पेपर्स नहीं थे। एक कुछ बोला था वो कि मारने के बाद, अटैक करने के बाद कुछ बोला हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मारते ही उसको पुलिस वालों ने पुलिस पकड़ वाले लिया पकड़ था। के ले गए।